basics about basic information about the information retrieval. I defined the information retrieval and discussed different components of it. And in addition to that, we had also discussed some more related information like evaluation of information retrieval system, recall and precision metrics, and then search and different kind of searching options. Okay, like how you can perform the search uh, in different environment like physical environment and digital environment. In physical environment, like going by Sir, voice catalogs. Hello, hello. Now the voice is clear. yes, sir. Sir, it's crystal clear, sir. I think it is Okay, from their end. okay, great, great. So yeah, so I was just giving a preface what we had discussed in the previous class. uh, we will move forward further for today's class, and we will be discussing in today's class from the index point of view, or the kind of library and information science domain has three major techniques which we are using from the ages. Like for example, classifications are there, cataloging is there, and indexing. These three are the major components which we are doing from the from the beginning of libraries itself. So in today's class, we will look into quite nowadays indexing is a part which is quite less discussed in the classrooms and also in the practice also, but the theory behind indexes are quite relevant, not only to the to the physical environment of libraries, but also from the digital environment, which I had discussed in the main class and in the revision class also, at how search engines work. And initially they take the query, and based on the crawler based results, they make the index about the concepts, and further go for making making the tabular, or you can say graph based results, so that you get better or optimum reports, or optimum results. So today I was talking what all things we are going to discuss. So let me just start writing. So in today's class we are going to discuss about the index. What is index? Index and indexing. Index, indexing, and then different how it evolved. It's evolution, evolution. Then in addition to that, we are also going to discuss um, the different principles of indexing, and what is how the process takes place in the indexing system. Different process also we are going to discuss. Then indexing language. Then purpose of actually afterwards we have to discuss about the controlled vocabularies. Controlled vocabularies. Then next one we are going to discuss is subject headings. Example of subject heading. Subject headings. Subject headings. Then thesaurus. Thesaurus. And afterwards we are going to talk about different thesaurial relations. Thesaurial relations. Thesaurial relations. Relations. Then some more advanced things like thesaurofacet, a bit thesaurofacet, and kinds of indexing techniques,
like derived and assigned indexing, keyword indexing, pre-coordinate and post-coordinate indexing. That also we will discuss. And we will be discussing in little detail about the keyword indexing, different kind of other pre-coordinate indexing like proxy, which have come in the question paper. Then a bit about bibliographic description, ISBD, IFLA, FRBR, and a bit about metadata like and example with the example of Dublin Core. And in the last class, we have discussed about the data mining and semantic web. So those technologies also we will just touch upon in today's class. So with this, I guess we will be able to finish today revisions as well. Let us begin with index. So what do you understand by index? So those who have attended the class, any of you, if you want to tell, or if you want to share any information about that index, what do you understand by index? So I would not waste the time here. All this exercise we have done in the class. So index, you understand from the your fingers. One of your finger is called index finger. Index fingers. One of the roles is to indicate or to tell that where something is. The same is the purpose of index or indexing in terms of library and information science also. So index is derived from a Latin word that is called indicare. I just mentioned here. Index is derived from indicare. Index, Latin word, indicare. So indicare means one who points out. Okay, this the literal meaning of index is one who points out. तो जब इसको डिफाइन करना है तो इसको हम बोल सकते हैं दिस इज अ काइंड ऑफ गाइड. ओके, index is a guide to items contained in certain resource or a certain source or concepts derived from a collection. तो एक सबसे आसान सा एग्जांपल जो मैं हमेशा बोलता हूँ वो है बैक ऑफ द बुक इंडेक्स से आपको समझना चाहिए. किसी भी बुक में आप लास्ट में आप ओपन करेंगे तो वहाँ एक इंडेक्स होता है. ठीक है, वो उस इंडेक्स में क्या क्या होते हैं? एक होता है आपका डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं, कॉन्सेप्ट्स एंड इट्स लोकेशन. अब मान लो किसी कोई भी आपने कोई बुक या कोई कोई रिसोर्स आपने उठाया और उसमें इंडेक्स है, तो वो बेसिकली क्या होगा? अल्फाबेटिकली इंडेक्स्ड होगा और वो अल्फाबेटिकली इंडेक्स टर्म्स कहीं पे लोकेशन होगा. जैसे मान लो यहाँ पे कोई भी टर्म है, मान लो इंडेक्स इटसेल्फ इज अ टर्म इन अ बैक अ बुक इंडेक्स. तो यहाँ पे नीचे ये लिखा, ये इसका लोकेशन पेज नंबर लिखा होगा. जैसे मान लो पेज नंबर 22. तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पर्टिकुलर इंडेक्स जो कीवर्ड है ये पेज नंबर 22 पे बिलोंग करता है. तो आप इससे समझें तो दो चीज हुआ, एक तो ये कॉन्सेप्ट और दूसरा इसका लोकेशन. ठीक है, यही सेम पर्पस होता है इंडेक्सिंग का. कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि क्या कॉन्सेप्ट है और वो कॉन्सेप्ट कहाँ पे स्थित है, कहाँ पे है वो आपके रिसोर्स में. सेम होता है आपके सर्च इंजन्स में भी. वर्ल्ड वाइड वेब पे सर्च इंजन्स आपके क्रॉलर्स को भेजता है और क्रॉलर्स जाके पता करते हैं कि वेयर इज द लोकेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर टर्म, और उस लोकेशन के हिसाब से फिर वो इंडेक्स बनाते हैं. इंडेक्स बनाने का पर्पस ही यही है कि आप लोकेट करो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट का जो रिसोर्स है उसे लोकेट करो और ले आके यूजर के स्क्रीन पे विजिबल करो ताकि आप उसे यूज कर सको. ठीक है, तो अब इंडेक्स बनाने का पर्पस क्या है इस पे थोड़ा बात करते हैं.
बहुत सारा लिटरेचर इस तरह से इमर्ज हो रहा है कि अगर इंडेक्स नहीं बनाया जाएगा तो you can't browse through everything. Okay, just take the example of back of the book index. अगर आपको कोई बोले कि एक बुक लिखी हुई है एकेडमिक लाइब्रेरियनशिप के ऊपर, ठीक है, और आपसे पूछा जाए लाइब्रेरियनशिप और एकेडमिक लाइब्रेरीज और आपसे पूछा जाए कि एकेडमिक लाइब्रेरी का कोई खास एलिमेंट, जैसे मान लो सॉफ्टवेयर यूज्ड इन एकेडमिक लाइब्रेरी, मे बी कोहा इज यूज्ड and that koha related concepts are mentioned in the book. Unfortunately, you can't go and read through the entire book. Some 200, 300, 400 page book will be there. It will be difficult for you to browse through everything, read through everything. And as a librarian, if you join in the any library, many a times you have to give reference service, so you can't read everything, okay, to provide any reference service. Or as a user itself, you can't go to the each and every part of the book and read and understand about the koha. Beside that, you can simply go to the index and see that the koha term has been used, maybe page number 10, page number 20, and page number 35. Now you have limited the scope. Now you have to go to these page numbers only. Okay, so this is the purpose of index, to reduce the time, okay, or and ensure that you are able to retrieve the resources quickly. Then there are multifaceted documents where you won't be able to guess from the table of content itself कि कौन सा रिसोर्स कहाँ पे होने वाला है या कहाँ पे होगा, या मल्टीपल जगह पे एक कॉन्सेप्ट हो सकता है. तो इन सारी चीजों से अवॉइड करने के लिए, इन सारी चीजों से इन सारे हर्डल से बचने के लिए क्या किया जाता है, इंडेक्स तैयार किया जाता है. बैक ऑफ द बुक इंडेक्स एक एग्जांपल है. इस तरह से बहुत सारे ऐसे बनाए जाते हैं और सबका पर्पस क्या है, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल. तो अब इंडेक्सिंग इसी से डिराइव करते हैं इंडेक्सिंग का डेफिनेशन को. इंडेक्सिंग इंडेक्स से ही इंडेक्सिंग बनता है. तो इंडेक्सिंग इज अ प्रोसेस टू मेक इंडेक्स, प्रोसेस टू मेक इंडेक्सेस. सिंपल सा डेफिनेशन है. अब अगर इसको और एडवांस डेफिनेशंस में लिखना है तो बुक्स में जो दिया गया है वो आप देख सकते. इसके बारे में मैं एक और सजेशन आपको दूंगा. देयर इज अ बुक रिटन बाय जी चौधरी एंड दिस इज अबाउट इंफॉर्मेशन रिट्रीवल. ये इस कीवर्ड पे इंफॉर्मेशन रिट्रीवल आप गूगल पे जाके सर्च करना जी चौधरी इंफॉर्मेशन रिट्रीवल और आपको एक सोर्स मिलेगा. आई थिंक यस, इट इज इंटरनेट आर्काइव. इट इज अवेलेबल ऑन इंटरनेट आर्काइव एंड यू कैन लोन इट. ठीक है, कुछ घंटों के लिए आप फ्री में लोन कर सकते हो. ठीक है, आप 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे का जो उनका जो टाइम स्लॉट होता है उसके हिसाब से लोन कर सकते हो. यू कैन इंक्रीज दैट ऑल्सो. तो ये सारी चीजें जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, और इंटायर इंफॉर्मेशन रिट्रीवल पेपर में जितनी भी कॉन्सेप्ट्स, मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपके सिलेबस में बिलोंग करते हैं, वो सभी आपको इस सोर्स में, काफी ऑथेंटिक सोर्स है, वहां से मिल जाएगा. ठीक है, इज वन ऑफ द प्रोफेसर्स एट, if I'm not wrong, at University of Illinois. You can verify that fact. और वहाँ से बहुत सारे इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएंगे. तो I advise you all to go through this doc along with your SLM. You must go through that also. ठीक है, अब आगे बात करते हैं इंडेक्सिंग के डेफिनेशन पे. इंडेक्सिंग का डेफिनेशन अगर इसको डिटेल में बोला जाए तो दिस इज टू आइडेंटिफाई, assign label, descriptor or subject headings to an item so that its subject contents are known, and index created can help in retrieving specific item of information. तो इस पूरे definition में आप एक चीज ध्यान से देखें तो its a purpose is to identify
Identify the resource, identify the concepts, फिर इसके बाद assign the labels. Assign the labels का मतलब होता है कि एक तरह से टैग, जैसे आप टैग देते हो कोहा में या किसी भी सॉफ्टवेयर में जो कि लेटर ऑन सर्चेबल हो, तो लेबल असाइन करते हो। डिस्क्रिप्टर, डिस्क्राइब करने के लिए उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को, ठीक है, थोड़ा लिटिल मोर इन्फॉर्मेशन, और इसी को सिनोनिमस टर्म में बोले अगर तो स्कोप नोट भी बोला जाता है थिसॉरस में। और फाइनली ये हो गया, these are the technical details about indexing, and the purpose is information retrieval. So indexing is a process to identify the concepts, assign the labels, assign the descriptors to the subject contents for the purpose of easy information retrieval of any information object. ठीक है? Let me just check whether all the students admitted. Yeah, they are admitted. Okay, coming back to the next part, that is evolution. ये evolution part शायद आपके अभी current examination point of view में देखो तो may or may not be very relevant, लेकिन जो नेट का एग्जाम होता है या आपके जो इंटरनल असेसमेंट होते हैं, उसमें एवोल्यूशन से कई बार क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा इंडेक्स सबसे पहले आया, कौन से बाद में आया, कौन से इंडेक्सिंग सिस्टम से क्या चीजें अडॉप्ट हुई अगले इंडेक्सिंग सिस्टम से। तो ये एक तरह से these are the advantages, or these are the advantages of learning evolution of any indexing or any other system. तो सबसे पहले इंडेक्स को क्या बोला जाता था? कैटलॉग और इंडेक्स में कोई खास डिफरेंस नहीं हुआ करता था। पहले सब्जेक्ट कैटलॉग और सब्जेक्ट इंडेक्स जो है वो अल्टरनेटिवली इंटरचेंजेबली यूज हुआ करते थे। पर क्या बाद में लेटर के फेज में क्या हुआ, ये रियलाइज किया गया कि सब्जेक्ट कैटलॉग का जो पर्पस होता है वो ब्रॉडर डॉक्यूमेंट्स को सर्च करने के लिए होता है, लेकिन जो सब्जेक्ट इंडेक्स होते हैं वो माइक्रो डॉक्यूमेंट्स को सर्च करने के लिए होते हैं। प्रोलिफिकेशन ऑफ लिटरेचर, जो बहुत सारे लिटरेचर लिखे गए, पर्टिकुलरली ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद बहुत सारे आर्टिकल्स, माइक्रो सब्जेक्ट्स बहुत सारे डेवलप हुए, नए नए सब्जेक्ट्स आप देखोगे तो अल्टरनेटिव डेज पे आप सुनोगे कि आज ये इस तरह के सब्जेक्ट्स आ रहे हैं। आप एक क्लासिफिकेशन सिस्टम से दूसरे क्लासिफिकेशन सिस्टम का अपडेट देखोगे तो आप देखोगे कि बहुत सारे नए सब्जेक्ट जुड़ गए जो 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 कि पहले के क्लासिफिकेशन सिस्टम्स में शायद नहीं थे। और this is one of the basis based on which people criticize the colon classification, that its last update was in 1987, and afterwards no update came. A lot of new subjects have emerged, new micro subjects have emerged, but the schedule is same as it was in 1987. तो डीडीसी या दूसरे सिस्टम्स जो आ रहे हैं वो नए नए सब्जेक्ट्स को इंक्लूड करते जा रहे हैं। तो इंडेक्स बनाने का एक पर्पस था कि जो माइक्रो डॉक्यूमेंट्स या माइक्रो सब्जेक्ट्स हैं, जो नए नए सब्जेक्ट्स इवॉल्व हो रहे हैं, उनके हिसाब से नए रिट्रीवल को फैसिलिटेट करने के लिए इंडेक्सेस बनाना जरूरी है। तो इस तरह से सब्जेक्ट कैटलॉग और सब्जेक्ट इंडेक्स को हम लोग कंपेयर करते हैं। तो सबसे जो पहला और मोस्ट यूज्ड वे ऑफ मोस्ट अप्लाइड इंडेक्सिंग टेक्निक वाज अबाउट बैक ऑफ द बुक इंडेक्स, जिसमें कि मैंने पहले ही आपको बताया कि कॉन्सेप्ट्स होते हैं और उनके लोकेशन होते हैं। इसके दूसरे तरीके के इंडेक्सेस की बात करें तो सीए कटर का इंडेक्स जो 1876 में आया था, जो उन्होंने अपने 1876 का जो इंडेक्स था, ये जो ईयर है ये लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस डोमेन के लिए बहुत खास अहमियत रखता है। उस टाइम पे कई सारी चीजें हुई, जैसे कि अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन स्टैब्लिश हुआ,
फिर डीडीसी का जो फर्स्ट वर्जन वो पब्लिश हुआ। कटर का कंट्रीब्यूशन था, जो कटर ने जो जो अपनी बुक लिखी थी 1876 में, वो था रूल्स ऑफ डिक्शनरी कैटलॉग, रूल्स फॉर रादर डिक्शनरी कैटलॉग। तो इस बुक में उन्होंने इंडेक्स का हिंट दिया था, ठीक है, इसको आरडीसी इन शॉर्ट बोला जाता है। और इससे ही शुरू हुआ आगे। डीवी ने भी एक एक जो दूसरा मेलविल डीवी की जो बुक थी, जो कि बाद में अपना स्टैंडर्ड हो गया, ज़्यादातर लाइब्रेरीज अभी उसको यूज कर रहे हैं क्लासिफिकेशन के लिए। उसका नाम मैं बता देता हूँ। दिस इज लिटिल यू नो लेंथियर। इट्स नेम वाज अ क्लासिफिकेशन एंड सब्जेक्ट इंडेक्स फॉर कैटलॉगिंग एंड अरेंजिंग द बुक्स एंड पम्पलेट्स फॉर अ लाइब्रेरी। ठीक है, तो ये एक इसमें भी थोड़ा सा हिंट दिया गया था इंडेक्स का, और क्लासिफिकेशन सिस्टम भी था ये। ठीक है, लेटर ऑन आगे बात करें तो सिस्टमेटिक इंडेक्स पब्लिश किया कैसर ने। कैसर का सिस्टमेटिक इंडेक्स आया, ये आया 1911 में। सिस्टमेटिक इंडेक्स बोलते हैं इसको। फिर अगला इंडेक्स जो इसी इंडेक्सिंग के टर्म में बोले तो चेन इंडेक्सिंग आया। चेन इंडेक्सिंग वाज पब्लिश्ड बाय एस आर रंगनाथन। इट केम इन 1933 34 1934। फिर अगला जो इंडेक्सिंग के इवोल्यूशन की बात करें तो रिलेशनल इंडेक्स आए। रिलेशनल इंडेक्स को फैराडे ने स्टार्ट करा था, ये 1950s के अराउंड आए। देन अगले जो अगला इंडेक्सिंग सिस्टम इस क्रम में आया, वो आया प्रेसी। प्रेसी को डेरिक ऑस्टिन ने दिया था, ऑस्टिन। दिस वाज अराउंड 1960s एंड 1960s। देन अगला इंडेक्स आपका था पॉप्सी। पॉप्सी, this is another Indian project which was initiated by G Bhattacharya, and quite quite influenced by chain indexing, because that was also a project of the same institution from where the POPSI originated. Meanwhile, another kind of indexing system which introduced in between was keyword indexing, and the person who is behind that is HP Loon. This also came in around 1950s. After 1950, I mean between 1950s to 60s, many other many keyword indexing techniques were derived. Some of them we will discuss today. Then Eugene Garfield is another person who gave another remarkable indexing system called as citation indexing. Citation indexing is one of the indexes which is quite popularly used nowadays for bibliometric and scientometric analysis. So it was in 1963 when citation index was first published. Citation indexes are in citation indexes. Citation indexes were established by Institute of Scientific. ISI was the institution, Institute of Scientific Information. That was the institute where the origin of the bibliographic database web of science is there. अब बात करते हैं अगले कंपोनेंट पे आते हैं, इंडेक्सिंग के प्रिंसिपल्स पे। तो जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं कि जो जब इंडेक्सिंग आप तैयार करते हो तो ये अनएम्बिगुअस होना चाहिए। अनएम्बिगुअस का मतलब कि ये एक ही टर्म मल्टीपल तरीके से यूज नहीं होना चाहिए, ठीक है। अस्पष्ट होना चाहिए, अस्पष्ट नहीं होना चाहिए जो भी टर्म्स आप लिख रहे हो, ताकि कंफ्यूजन ना हो बाद में सर्च के टाइम पे। देन अनदर वन इज स्पेसिफिक। द जैसे जो भी कीवर्ड आप इस्तेमाल कर रहे हो, दैट शुड नॉट बी जैसे आपको कोई स्टेइंग प्लेस है, मान लो स्टेइंग प्लेस करके कोई वर्ड है, और
कई तरीके से लिखा जा सकता है, कोई इसको होम लिख सकता है, कोई हाउस लिख सकता है, ड्वेलिंग प्लेस हो सकता है। इस तरह से कई कई दूसरे टर्मिनोलॉजीज के लिए यूज हो सकते हैं, बट यू हैव टू बी स्पेसिफिक व्हाट एवर टर्मिनोलॉजी यू आर यूजिंग based on any subject heading or any control vocabulary. What you should do is you should make throughout the document only one keyword for one concept. Okay, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी होती है। स्कोप आपको प्री डिफाइन कर लेना होता है जब भी आप बात करते हो कोई भी इंडेक्सिंग सिस्टम तैयार करने के लिए। ओके, एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट एनी इंडेक्सिंग सिस्टम शुड बी यूजर सेंट्रिक। तो these are some of the principles. So the principles are unambiguous. Then another word is specific. It should be specific. Then scope should be predefined. Then it should be user centric. So these are the principles which one must consider while doing any kind of making any kind of indexes or doing the indexing. अब बात करते हैं प्रोसेस की। ये जो प्रोसेस है पूरा का पूरा इंडेक्सिंग बनाने का, इसके सबसे पहला जो कंपोनेंट होता है वो होता है फैमिलियराइजेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट। जैसे ही कोई इंडेक्स तैयार कर रहे हो तो सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट्स के साथ फैमिलियराइज होना होगा, समझना होगा कि है क्या वो एक पर्टिकुलर इंडेक्सिंग सिस्टम, या कोई 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 मान लो आप बैक ऑफ द बुक के इंडेक्स से एग्जांपल लेता हूँ क्योंकि वो आसान है। तो अब मान लो आपको पूरे बुक का इंडेक्स तैयार करना है, तो सबसे पहले आपको पूरा गो थ्रू करना पड़ेगा, पूरा का पूरे डॉक्यूमेंट को गो थ्रू करना पड़ेगा, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट द डॉक्यूमेंट। दूसरा है एनालाइज। once you have gone through the document you have to analyze the concepts. अब analyze the concept in the sense कि आप उसको डिफाइन करोगे, हर एक कॉन्सेप्ट को डिफाइन करोगे और अंडरस्टैंड करोगे कि which concept should come where, okay, and what are the relation between or among the concepts. So all those factors are decided in the analysis phase. Then the third one is translation. ट्रांसलेशन जो होगा वो आप क्लासिफिकेशन स्कीम में भी ट्रांसलेट करते हो। अगर मान लो कोई बुक दी हुई है एकेडमिक लाइब्रेरी इन इंडिया, इसका आप क्लासिफिकेशन नंबर जिस तरह से बनाते हो उसी तरह से जब आप इंडेक्स तैयार करते हो तो इंडेक्स के बाद जो जो एनालिसिस होती है, ट्रांसलेशन दो तरीके का होता है। या तो वर्बटिम ट्रांसलेशन होगा जहां पे जैसे मैंने बताया कि होम, हाउस, अबॉर्ड या कोई और हो सकता है ड्वेलिंग प्लेस, इन सब में से किसको यूज करना है। तो ये इस स्टेज पे आप आइडेंटिफाई करते हो कि कौन सा पर्टिकुलर कीवर्ड यूज किया जाएगा इंडेक्स तैयार करने के लिए, और उसी कीवर्ड को आप यूज करोगे फाइनली इन योर इंडेक्सिंग सिस्टम। ओके, एंड नॉट इट इज नॉट लिमिटेड टू दैट, you have to suppose you are using house only but avoiding using these places. So if someone tries to search, you don't know tomorrow some user can come by searching home, not house, but your choice of access point is house. This is the thing which you have given in your index. तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे सी और सी ऑल्सो रेफरेंसेस होते हैं, सी ऑल्सो एंड सी रेफरेंसेस। इन रेफरेंसेस का यूज करोगे ऑप्टिमाइज करने के लिए सर्च प्रोसेस को, कि अगर मान लो कल को कोई होम से सर्च करने आ सकता है तो वो उसको आप दे दोगे होम की जगह पे सी,
जब इंडेक्सिंग, कोई भी इंडेक्सिंग सिस्टम तैयार किया जाता है, ये जब थेसोरस, आप कोई भी थेसोरस ओपन करोगे या सब्जेक्ट हेडिंग ओपन करोगे, तो क्वाइट ऑफन दीज कंपोनेंट्स और दीज टर्म्स आर यूज्ड। ठीक है, तो अगर प्रोसेस आता है एग्जाम में, आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द इंडेक्सिंग प्रोसेस, तो ये 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं जो इंडेक्सिंग बनाने के लिए यूज में आते हैं। पहला है फैमिलियराइज अबाउट द कॉन्सेप्ट, फैमिलियराइजेशन, देन एनालिसिस, देन ट्रांसलेशन। बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं इंडेक्सिंग बनाते समय, ठीक है, क्योंकि आपका इंटेंशन क्या है और हाउ इट इज बीइंग परसीव्ड। ठीक है, एज ए इंडेक्सर आपको दो ये सोचना है, मान लो आज आपने कोई कीवर्ड और कोई इंडेक्स बनाया, हो सकता है कि यूजर जो है वो किसी और इंडेक्सिंग टर्म के साथ आए सर्च करने के लिए। तो आपको ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, एंड यू हैव टू यू नो टैकल विद दैट। पहले से ही एंटिसिपेटरी इंडेक्सिंग, मेकिंग एन इंडेक्स इज एंटिसिपेटरी एंड दैट इज चैलेंजिंग। Then use proper term for expressing the same। तो कोई भी, मान लो कोई कीवर्ड है, कोई की टर्म है, उसको कौन सा पर्टिकुलर टर्म यू हैव टू यूज, ये भी एक और चैलेंज है। और बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं इंडेक्सिंग बनाते समय, जैसे और वो सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो नेचुरल लैंग्वेज की वजह से। ठीक है, जो हम जिस तरह से सोचते हैं, जरूरी नहीं है कि दूसरे भी उस तरह से ही सोच के आए, और रिट्रीवल के लिए पर्टिकुलर अलग अलग तरीके के प्रॉब्लम्स हैं, जो नेचुरल लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में अगर आप ट्रांसलेशन करना चाहते हो। जैसे फॉर एग्जांपल सिनोनिम्स हो गए, सिनोनिम्स टर्म्स जो होंगे, एक एग्जांपल है फनी और ह्यूमरस। फनी और ह्यूमरस, ये एग्जांपल हो गया सिनोनिमस टर्म्स का। अब आपको कौन सा टर्म चूज करना है, ये एक तो चैलेंज हो गया, क्योंकि आप सारे टर्म्स यूज नहीं कर सकते, आप यू कैन नॉट बी एग्जॉस्टिव। और Excuse अगर me, sir. एग्जॉस्टिव हो गए तो इट विल नॉट बी एनी वैल्यू। यस, या Sir, sorry प्लीज। to interrupt you in the meet. Sir, somebody is trying to join, but it is showing that you need to allow them. So please, ओके, if you या these people have tried thrice, I guess. Every time they are getting out. Okay, no problem, I have got them in. Okay, so I was talking about the challenges. What are the different problems or challenges in making the indexes? So first of the challenge, I said the synonymous terms. There are different synonymous terms, and each and every terms cannot be used, okay, due to several limitations. तो अगर आप इंडेक्स बना रहे हो फनी और ह्यूमरस, और अगर दोनों इंडेक्स टर्म्स यूज हो गए, तो बैक ऑफ द बुक इंडेक्स से समझो, तो जो फनी टर्म है वो एफ के साथ आएगा, और जो ह्यूमरस है वो एच के साथ आएगा, जबकि दोनों का मीनिंग है सेम। तो ये इस तरह के बहुत सारे वर्ड हैं जो नेचुरल लैंग्वेज में अलग अलग तरीके से यूज किए जाते हैं। तो दैट इज वन। इस तरह से दूसरे तरीके के नेचुरल लैंग्वेज प्रॉब्लम्स हैं, जैसे होमोनिम्स हो गए। होमोनिम्स का एग्जांपल हो गया आपका बैंड और बैंड। एक तो रिस्ट में पहनने वाला हो गया, और दूसरा म्यूजिक से रिलेटेड हो गया। बैट और बैट, एक क्रिकेटिंग बैट हो गया, और एक एक जो है वो फ्लाइंग मैमल हो गया। तो इस तरह के चैलेंजेस, बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे जब आप एक्चुअली एक्चुअल इंडेक्स प्रिपेयर कर रहे होगे, तो इस तरह के चैलेंजेस आएंगे। सो दीज आर दी प्रॉब्लम्स और challenges which you have to encounter when you are doing the indexing। अब इंडेक्सिंग लैंग्वेज की बात करें तो मैंने जैसे क्लास में भी बताया था। Still, I guess someone wants to join. I just get that person. Okay. Coming back to the class. तो जैसे हमारा नेचुरल लैंग्वेज होता है, उसी तरीके से इंडेक्सिंग का भी लैंग्वेज होता है। हमारे नेचुरल लैंग्वेज में क्या क्या चीजें होती हैं? एक तो हमारा सिंटैक्स होता है कुछ, एक होता है वो वोकेबुलरी,
और सिमेंटिक्स। तो आप कोई भी चीज जब बोलने जाते हो किसी भी लैंग्वेज में, तो ये मेजर 3 कंपोनेंट हैं जिसकी जरूरत पड़ती है। इंडेक्सिंग लैंग्वेज भी, इंडेक्स तैयार करने का जो लैंग्वेज है वो इंडेक्सिंग लैंग्वेज है, तो उसमें भी ये तीनों जरूरी हैं। बस यहाँ पे जो कंट्रोल वोकेबुलरी है उसके जगह पे इंडेक्सिंग लैंग्वेज में, जो यहाँ पे जो वोकेबुलरी है उसके जगह पे इंडेक्सिंग लैंग्वेज में कंट्रोल्ड वोकेबुलरी आ जाता है। ठीक है, कंट्रोल वोकेबुलरी। बाकी सिंटैक्स और सिमेंटिक्स यहाँ पर भी होते हैं। ठीक है, तो अब जैसे मान लो एक कीवर्ड है आपका मंकी ईट्स बनाना, तो सब्जेक्ट प्रेडिकेट और ऑब्जेक्ट से आपने यहाँ पे एक सेंटेंस बनाया, और जो आपको यू आर एबल टू मेक सेंस आउट ऑफ इट, दैट देयर इज अ मंकी व्हिच इज ईटिंग बनाना और व्हिच ईट्स अ बनाना। ओके, तो इसको ही अगर मशीन के टर्म में बोलें या आर्टिफिशियल लैंग्वेज के टर्म में बोलें, तो हमें थोड़ा सा कुछ चीजें कंसीडर करनी पड़ेंगी। हम like natural language, we can't give the synonymous terms or homonyms or different word forms or different numbers, genders, all those things we have to control, and that is called as control vocabulary. So CV, then semantics and syntax, syntax and semantics, इसके 3 पार्ट हो गए इंडेक्सिंग लैंग्वेज के। ठीक है, अब कंट्रोल वोकेबुलरी में ही अब जस्ट, अब कंट्रोल वोकेबुलरी जो है इसके दो मेजर फॉर्म होते हैं। एक होता है कोडेड और एक होता है वर्बल। Already all these things we have discussed in the class. Those who could not attend, for them only, for them this graph will be really helpful to understand the entire workflow of indexing. Okay, तो कोडेड का जो एग्जांपल होते हैं वो है आपके क्लासिफिकेशन स्कीम्स। क्लासिफिकेशन स्कीम आप सभी जानते हैं, जैसे कि डीडीसी हो गया, सीसी हो गया, यूडीसी हो गया, एलसी हो गया, ये सारे क्लासिफिकेशन स्कीम्स हैं। और वर्बल के एग्जांपल की बात करें तो सब्जेक्ट हेडिंग्स हो गए, सब्जेक्ट हेडिंग, एंड अनदर वन इज थिसॉरस। ये जो वर्बल के वर्बल कंट्रोल वोकेबुलरीज के एग्जांपल हो गए। तो कंट्रोल वोकेबुलरी क्या है? कंट्रोल वोकेबुलरी इज सिमिलर टू द वोकेबुलरी व्हाट वी स्पीक इन नेचुरल लैंग्वेज। लेकिन क्या होगा कि नेचुरल लैंग्वेज में हमारे ब्रेन की कैपेसिटी है कि हम डिफरेंट फॉर्म्स को समझ सकते हैं, और लिमिटेशन नहीं है। जो 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 मशीन ट्रांसलेशंस के जो लिमिटेशंस हैं उसके वजह से हमें वोकेबुलरी को कंट्रोल करना होता है। हर एक टर्म हम यूज नहीं कर सकते हैं, जैसे सिनोनिमस, होमोनिम्स, वर्ड्स, स्पेलिंग, ये सारे जो जो प्रॉब्लम्स हैं इनको हम क्या करते हैं, इसको हम प्री डिफाइन कर लेते हैं कंट्रोल वोकेबुलरी के फॉर्म में। जैसे क्लासिफिकेशन स्कीम में डिफरेंट कीवर्ड्स आ जाते हैं, सब्जेक्ट हेडिंग लिस्ट में डिफरेंट कीवर्ड्स हो जाते हैं, हम उन्हीं कीवर्ड्स को यूज करेंगे इंडेक्स तैयार करने के लिए। तो इस टर्म इस सेंस में इसको कंट्रोल वोकेबुलरी बोला जाता है, और इस प्रोसेस को वोकेबुलरी कंट्रोल बोला जाता है। ठीक है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस डोमेन में इसका बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल है। आप में से बहुत सारे लोगों ने जब कैटलॉगिंग की होगी तो उस समय उन्हें सब्जेक्ट हेडिंग प्रोवाइड किया गया होगा, ये जानने के लिए कि हाँ कौन सा पर्टिकुलर की टर्म आपको यूज करना है या कैसे टैग्स आपको देने हैं जब आप कैटलॉगिंग कर रहे हो। ठीक है, तो इसके अलावा आप थिसोरस के भी कई सारे पार्ट होते हैं। कुछ अल्फाबेटिकल थिसोरस होते हैं और कुछ
फेसेटेड थिसोरस होते हैं। फेसेटेड थिसोरस और इज सिमिलर टू फेसेटेड क्लासिफिकेशन, जिसमें कि जिसमें कि प्री डिफाइंड कीवर्ड्स नहीं होते हैं। आप पहले सिंथेसाइज करते हो की टर्म्स को, एनालाइज करते हो, और यू योरसेल्फ कैन डिराइव द कॉन्सेप्ट्स। तो इसका जो एग्जांपल हो गया फेसेटेड का, वो थिसोरोफेसेट हो गया। इसके बारे में बात करेंगे थोड़ा सा। थिसोरोफेसेट एंड अनदर वन इज क्लासोरस। तो इस डायग्राम से ही हम लोग थोड़ा इलेबोरेट करना शुरू करते हैं। लेट अस फर्स्ट डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन स्कीम। क्लासिफिकेशन स्कीम के बारे में आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा। इनुमरेटेड क्लासिफिकेशन स्कीम होता है और फेसेटेड क्लासिफिकेशन स्कीम होता है। इनुमरेटेड के का जो क्लासिक एग्जांपल है वो है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग, सॉरी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस classification scheme. DDC is also enumerated classification. Then CC is considered, CC and UDC is considered as faceted classification schemes. ठीक है। इसके अलावा bibliographic classification है which was given by Bliss, that is also a example of faceted classification. इसके बारे में आपने ऑलरेडी पिछले क्लासेस में, पिछले सेमेस्टर में पढ़ा होगा क्लासिफिकेशन स्कीम के बारे में, और आपने BLIS में पढ़ा होगा। अगला जो है वो है सब्जेक्ट हेडिंग। सब्जेक्ट हेडिंग भी जब आप कैटलॉग तैयार करने लगते हो, बनाने लगते हो, या कोई भी स्टैंडर्डाइज्ड सिस्टम आपको तैयार करना है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम में, तो आप कीवर्ड्स के लिए या सब्जेक्ट्स के लिए कौन से टर्म्स यूज करने हैं, कौन कौन से टर्म्स अवॉइड करने हैं, उसके लिए आप क्या करते हो, सब्जेक्ट हेडिंग लिस्ट का यूज करते हो। तो जो सबसे पॉपुलर सब्जेक्ट हेडिंग्स हैं, एक तो है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग LCSH, एंड दूसरा है सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग SLSH। इन दोनों का यूज किया जाता है सब्जेक्ट हेडिंग्स का जहां भी हमें जरूरत लगता है। तो हम क्लासिफिकेशन नोटेशंस बनाने के लिए भी सब्जेक्ट हेडिंग का यूज करते हैं, कई बार कैटलॉगिंग करने के लिए भी सब्जेक्ट हेडिंग का यूज करते हैं। ठीक है। तो सब्जेक्ट हेडिंग को बनाने के लिए क्या करना होता है आपको, सब्जेक्ट ये भी, दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ योर सिलेबस। तो मान लो आप कोई भी सब्जेक्ट हेडिंग खुद से तैयार करना चाहते हो विच इज बियॉन्ड दीज लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग या सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग, तो कुछ कंसिडरेशंस आपको रखने होते हैं अपने दिमाग में। वो सबसे पहला है कि जो भी कीवर्ड्स होते हैं किसी भी सब्जेक्ट हेडिंग में, दोज विल बी स्पेसिफिक। स्पेसिफिक होने का मतलब हुआ कि आप ऐसे कीवर्ड्स यूज नहीं कर सकते जो बहुत ज्यादा जेनरिक हो। ठीक है। बहुत ज्यादा जेनरिक कीवर्ड्स अगर यूज किया तो प्रोबेबली यूजर को और लोगों को ऑप्टिमम रिजल्ट्स नहीं मिलेगा। जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ, एक जो मैंने क्लास में भी बताया था। मान लो अगर अगर आपसे बोला जाए कि कोई कॉन्सेप्ट है, मान लो पीकॉक है, पीकॉक है, तो इसको आप बहुत ब्रॉडर टर्म में यूज नहीं कर देंगे कि इसको आप बोल दो कि बर्ड। ठीक है। जहां पे बर्ड्स आ रहे हैं वो तो बहुत ब्रॉडर टर्म हो गया। पिकॉक्स के बारे में अगर कोई बुक है, अगर कोई यूजर सर्च करने के लिए आ रहा है, तो वो जो यूजर है वो, यू हैव टू मेक श्योर कि स्पेसिफिकली वो कितना नीचे, कितना ग्रैनुलर लेवल तक वो पहुंच सकता है सर्च के दौरान। तो आपको यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक। यू कांट यूज बर्ड और वेरी, बहुत सारे दूसरे तरीके के बर्ड्स हैं, डक हो गया, दूसरे पिकॉक हो गया, प्रो हो गया। तो अब आप जब बात कर रहे हो किसी ऐसे बर्ड के बारे में, यू हैव टू बी स्पेसिफिक, यू हैव टू यूज दैट स्पेसिफिक टर्म, नॉट द ब्रॉडर टर्म, नॉट इट्स ब्रॉडर टर्म। अगली चीज है कॉमन यूज। जब भी सब्जेक्ट हेडिंग बनाए जाते हैं तो ये ध्यान दिया जाता है कि कॉमनली कौन कौन से वर्ड यूज हो रहे हैं। ठीक है। 1900 90 में भी the key terms which were used by Shakespeare during the 15th 16th century, that those key terms may not be useful now.
तो अब सर्च तो अभी के हिसाब से हमें करवाना है, अपने हमारे जो यूजर्स होंगे उनका रिट्रीवल जो है वो अभी के की टर्म्स के हिसाब से होना है। तो यू हैव टू बी you have to look into the current terms. Currency is very important. Current terms. Then दूसरा है कॉमन यूजेस। तो जिन टर्म्स का कॉमन यूज हो रहा है उन्हें यूज करना है। जैसे मान लो मैंगो है। मैंगो इज समथिंग विच इज वेरी कॉमनली यूज्ड, ठीक है, पर इसका जो साइंटिफिक नेम है वो मैंगीफेरा इंडिका है, या फिर गुआवा का सीडियम गोजावा, और मे बी और रोज इट इज रोजा इंडिका। तो ये साइंटिफिक नेम्स तो हैं इसके, लेकिन दे आर नॉट कॉमनली यूज्ड बाय द पीपल। तो अब आपको क्या करना है, जब सब्जेक्ट हेडिंग्स जब बनाया जाता है, जब जेनरिक सब्जेक्ट हेडिंग्स बनाए जाते हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट हेडिंग्स। अगर मान लो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट हेडिंग्स है जहाँ के यूजर्स ही डोमेन स्पेसिफिक है, तो वहां पे आपको इंस्टेड ऑफ यूजिंग जेनरिक नेम्स लाइक मैंगो, यू हैव टू यूज मैंगीफेरा इंडिका। तो इट इज अबाउट द पर्पस why you want to make the index. Okay, तो common uses you have to look into कि आपका यूजर किस टर्म से आएगा सर्च करने के लिए, कॉमन यूजेस। नेक्स्ट वन इज नेक्स्ट वन इज यूनिफॉर्मिटी। तो अगर आपने होम लिखा है तो होम ही रहेगा, बाकी को आप हाउस और अबॉर्ड और ड्वेलिंग प्लेस और स्टेइंग प्लेस, ये सारी चीजें आप सी या सी ऑल्सो रेफरेंस के साथ यूज करोगे, नॉट like all the key terms you use, so that then people will be confused. Okay. तो ये तो हो गया considerations which you have to have in your mind when you are developing any subject heading. Okay, तो subject heading के बारे में हमने बता दिया। subject heading क्या है, ये this is list of concepts which is used for making the catalog or preparing the index or doing the classification. This is a form of control vocabulary which is quite often used in different library and information science operations. The common examples of subject headings are Library of Congress subject heading and Sears list of subject heading. अगला है thesaurus. तो thesaurus जो वर्ड है वो ओरिजिनेट हुआ है ग्रीक से। ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब होता है ट्रेजरी। ट्रेजरी का मतलब आप समझते हैं, जहाँ पे पैसा रखा जाता है, स्टोर हाउस पैसा रखने का, जो इन जनरल जो मीनिंग होती है। लेकिन यहाँ पे जो ट्रेजरी है वो ट्रेजरी ऑफ नॉलेज, ठीक है। थिसॉरस इज समथिंग वेयर ट्रेजरी ऑफ नॉलेज इज स्टोर्ड और केप्ट, ठीक है, और ये ग्रीक ओरिजिन का टर्म है। सबसे पहला थिसॉरस जो जिसके बारे में बात की जाती है वो है रोजर्स थिसॉरस। रोजर्स थिसॉरस आई थी around 1852. Rogers thesaurus came in Rogers thesaurus in 1852. Then ये thesaurus से जो कई सारे सिमिलर टर्म्स, सिमिलर कॉन्सेप्ट्स भी होते हैं जिससे आप कंफ्यूज ना हो कभी। डिक्शनरी है, डिक्शनरी। देन इंसाइक्लोपीडिया के बारे में भी आपने सुना होगा, इंसाइक्लोपीडिया, ग्लॉसरी। तो ये सारे सिमिलर टर्म्स हैं जो थिसॉरस के साथ यूज कर किए जाते हैं। कई कई बार आपने आपने अगर सर्च करा होगा ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी पे या कोई भी स्टैंडर्ड डिक्शनरीज जो होती है, मरियम वेबस्टर पे जाओगे तो वहां पे आपको थिसॉरस का भी ऑप्शन देता है वो, ठीक है। तो डिक्शनरी को अगर डिफाइन करने को बोला जाए तो आप बोलोगे कि it includes the meaning of words alphabetically, sometimes pronunciations and etymology of the keyword of that term is also given, and sometimes grammar forms are also given in the dictionary. There are there are examples of dictionary, Oxford dictionary or Hindi to English translation. It is language based, basically one to another language you translate using the dictionary.
इंसाइक्लोपीडिया ये थोड़ा सा एडवांस है, जो कि रेफरेंस वर्क के लिए यूज होता है। आपको इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के बारे में पता ही होगा, जो कि एक रेफरेंस सोर्स के तौर पे यूज किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट इंफॉर्मेशन को एक्वायर करने के लिए। ठीक है, ये डोमेन स्पेसिफिक भी हो सकता है, जेनेरिक भी होता है, और एक डिटेल में आपको साइंटिफिक इंफॉर्मेशन या फिर कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लोर करने के लिए की मदद देता है। विकिपीडिया इज आल्सो काइंड ऑफ एग्जांपल, जिसपे कि आप चीजों के बारे में समझ सकते हैं, जान सकते हैं, एंड यू कैन यूज इट फॉर द रेफरेंस। देन अनदर वन इज ग्लोसरी। ग्लोसरी इज यूज्ड for defining any concept or any term. This is also alphabetical list of terms. Okay. अब थिसॉरस का यूज कहाँ कहाँ क्या क्या करने के लिए होता है? थिसॉरस का बेसिकली यूज होता है नॉलेज को मैप करने के लिए। नॉलेज मैपिंग का मतलब ये हुआ कि किसी भी डोमेन के सारे कॉन्सेप्ट्स को अल्फाबेटिकली या किसी और फॉर्म में स्टोर किया जाता है थिसॉरस में। ठीक है, एक पर्पस तो कंट्रोल वोकेबुलरी हो गया, दूसरे पर्पस के लिए भी इसको यूज किया जाता है फर्दर एक्सप्लेनेशन के लिए या अदर रिलेशंस बताने के लिए, एक टर्म्स का दूसरे टर्म्स के लिए। these are the things which for which it is used. So this is then kind of storage of knowledge or mapping of the knowledge. That is one. Another one is controlled vocabulary. Classification, this is classified hierarchy. thesaurus में आपको पता चल जाता है कि कौन सा ब्रॉडर टर्म है, कौन सा नैरोअर टर्म है, और कौन सा रिलेटेड टर्म है, जो कि ना तो ब्रॉडर है वो और ना ही रिलेटेड टर्म है। तो ये तीन तरीके के रिलेशंस होते हैं जो थिसॉरस में यूज करे जाते हैं। ठीक है, आगे थिसॉरस का जो स्ट्रक्चर होता है, जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, आप सर्च कर सकते हो खुद भी जाके। सबसे पहले इसमें सबसे ऊपर जो है वो डिस्क्रिप्टर होता है, जो मेन कीवर्ड होता है, मेन कीवर्ड और उसका डिस्क्रिप्शन। फिर उसका सिनोनिम्स या एंटोनिम्स या दूसरे फॉर्म्स दिए जाते हैं उसी थिसॉरस में। और फिर ब्रॉडर टर्म्स दिए जाते हैं। ब्रॉडर टर्म्स मतलब जो टर्म आपने सर्च करा है उससे ब्रॉडर, उससे बड़ा टर्म। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपने सर्च करा है इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स का जो ब्रॉडर टर्म हो जाएगा वो हो जाएगा सोशल साइंस, और जो नैरोअर टर्म होगा वो क्या होगा, पब्लिक फाइनेंस में भी। और जो रिलेटेड टर्म होगा, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड टर्म हो गया आपका फाइनेंस में भी, और बजट। तो ये हो गए आरटी रिलेटेड टर्म्स। तो ये सारी चीजें डिस्क्राइब करी जाती हैं थिसॉरस में। ठीक है, तो let us go to the next page. अब आगे एक और इम्पॉर्टेंट चीज है जो आप लोगों को समझना चाहिए, वो है थिसॉरल रिलेशनशिप। थिसॉरल रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, क्योंकि आप अगर मान लो अपना करियर आगे बढ़ाना चाहते हैं, रिलेशनशिप अगर अगर आप बनाना चाहते हैं अपना करियर एज ए टैक्सोनॉमिस्ट और एज अ ऑन्टोलॉजिस्ट, या सिमेंटिक वेब के एरिया में आप रिसर्च करना चाहते हैं, तो आपको चीज़ें क्लियर होनी चाहिए रिलेशनशिप के बारे में, कि कौन सा किस किस तरह का रिलेशन टर्म्स के बीच में स्टैब्लिश हो रहा है। ठीक है, तो दो मेजर तरीके का रिलेशन होता है टर्म्स में, जो कि थिसॉरस में एक्सप्लेन करा जाता है। एक है हायरार्किकल रिलेशनशिप और दूसरा है नॉन हायरार्किकल। तो जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, हायरार्किकल रिलेशनशिप जो होता है वो एक हायरार्की स्टैब्लिश करता है, एक बताता है कि
एक ऑर्डर बताता है कि कौन सा उस ऑर्डर में ऊपर है, और एक रैंक बताता है कि कौन सा उस रैंक में ऊपर है और दूसरा कौन सा नीचे है। ठीक है, तो यस, सो हायरार्किकल रिलेशनशिप में के कई सारे एग्जांपल्स हैं। एक है जेनेरिक हायरार्किकल रिलेशनशिप हो सकता है। जेनेरिक हायरार्किकल रिलेशनशिप को का एग्जांपल हो सकता है, जैसे हो सकता है मैमल्स, और मैमल्स कहाँ आते हैं, वर्टिब्रेट्स में आते हैं। इनका जो ब्रॉडर टर्म बनेगा वो वर्टिब्रेट्स बनेगा। तो ये इस तरह का जो रिलेशन है वो जेनरिक रिलेशन है। दूसरा एक और खास तरीके का रिलेशनशिप कीवर्ड्स में होता है, टर्म्स में होता है, वो होता है होल पार्ट रिलेशनशिप। ये भी हायरार्किकल रिलेशनशिप ही है। इसका एग्जांपल हो सकता है, जैसे ह्यूमन बॉडी है, ये ब्रॉडर टर्म हो गया ह्यूमन बॉडी, और कोई भी एक पार्ट बॉडी का, जैसे कि मान लो चेस्ट है, तो इट इज द ह्यूमन बॉडी इज द ब्रॉडर टर्म ऑफ चेस्ट। उस तरह से अगले तरीके का रिलेशनशिप हो सकता है इंस्टेंस रिलेशनशिप। इंस्टेंस रिलेशनशिप का एग्जांपल हो सकता है, जैसे मान लो कोई मर्फी हो गया। मर्फी इज द, मर्फी का जो ब्रॉडर टर्म होगा वो कोई टेलीविजन है, बीटी टेलीविजन। या माउंटेन रेंजेस का एग्जांपल ले सकते हो। माउंटेन रेंज जो है वो ब्रॉडर टर्म है हिमालयस का। अगला हायरार्किकल रिलेशनशिप हो सकता है, ये हो गए हायरार्किकल रिलेशनशिप। अब नॉन हायरार्किकल रिलेशनशिप भी हो सकते हैं। कई बार क्या होती है, रिलेशंस दो टर्म में हमेशा आप हायरार्की में नहीं बता सकते। कई चीजें पैरेलल एरे में भी हो सकती हैं। आपने एरे और चेन पढ़ा होगा क्लासिफिकेशन के क्लास में। तो एरे क्या होता है, एरे सेम हायरार्की में होता है, और जो चेन होती है वो नैरोअर लेवल पे होती है या ब्रॉडर लेवल पे होती है। तो अब जो इक्विवेलेंस, एक होता है इक्विवेलेंस रिलेशनशिप नॉन हायरार्किकल रिलेशनशिप में, और दूसरा होता है एसोसिएटिव रिलेशनशिप। तो इक्विवेलेंस रिलेशनशिप का एग्जांपल क्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए जितने सिनोनिम्स हैं, ठीक है, दो टर्म, जैसे मैंने एक एग्जांपल बताया आपका फनी और ह्यूमरस, ये ब्रॉडर और नैरोअर में आप नहीं बता सकते हो कि फनी और ह्यूमरस कहाँ पे जाएगा। ये दोनों इक्विवेलेंट रिलेशनशिप में आते हैं। ठीक है, तो इन्हें समझाने के लिए थिसॉरस में क्या किया जाता है, रेफरेंसेस यूज करे जाते हैं। सी रेफरेंस यूज किया जाता है और यूज रेफरेंस यूज किया जाता है। ठीक है, दिस इज इक्विवेलेंस रिलेशनशिप। एसोसिएटिव रिलेशनशिप जो होती है, दो चीजें जुड़ी हुई तो हैं, पर वो ना तो इक्विवेलेंट हैं और ना ही किसी हायरार्की में आती हैं। जैसे मान लो हार्वेस्टिंग और क्लोथ्स, हार्वेस्टिंग और क्लोथ्स, या क्लाउड और रेन। अब क्लाउड और रेन में से आप ये नहीं बता सकते कि कौन सा हायरार्की में ऊपर है या नीचे है, और ये दोनों इक्विवेलेंट भी नहीं है, ये दोनों एसोसिएटेड हैं। क्लाउड होगा तो ही रेन होगी। ठीक है, तो अब इसे बताने के लिए आपको क्या करना होता है, आपको सी ऑल्सो रेफरेंस यूज करना होता है। ठीक है, सी ऑल्सो रेफरेंस, तो मैंने बताया दो तरह के रेफरेंसेस यूज किए जाते हैं नॉन हायरार्किकल रिलेशन को के चैलेंज से बचने के लिए, ताकि यूजर्स
ज़्यादा बेहतर या ऑप्टिमम रिजल्ट्स ऑब्टेन कर सके। आगे सी ऑल्सो रिलेशंस और सी रिलेशंस या जो एसोसिएटिव रिलेशन होता है, इसको समझाने के लिए जो जो ऑपरेटर ये यूज करते हैं वो है आरटी या रिलेटेड टर्म, ठीक है। और इन दोनों को जो जो ब्रॉडर टर्म और नैरोअर टर्म ये यूज होता है हायरार्किकल रिलेशनशिप के लिए, ठीक है। अब हमने जो मेजर कंपोनेंट्स बताए थेसोरस के, वो हुए बीटी, एनटी, आरटी, स्कोप नोट। स्कोप नोट जो होता है यहाँ पे बताया जाता है कि कौन सा कीवर्ड, कीवर्ड का बेसिकली डिस्क्रिप्शन होता है, और एक तरह से ये किसी कीवर्ड का स्कोप बताने के लिए काम में आता है, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट बताने के लिए काम में आता है। और सी एंड सी ऑल्सो, ये सारे रेफरेंसेस हैं। तो ये सारे कॉमन टर्मिनोलॉजीज हैं, आर टी, बी टी, एन टी, स्कोप नोट, सी, सी ऑल्सो, डिस्क्रिप्टर, ये सारे टर्मिनोलॉजीज हैं जो स्कोपस में आपको मिलेंगे, ठीक है। अब ये तो हो गई थेसोरस की बात। अगला है ये थिसोरस जो है वो, दिस इज आल्सो एग्जांपल ऑफ कंट्रोल वोकेबुलरी। तो हमने तीन एग्जांपल अभी तक बात कर लिए कंट्रोल वोकेबुलरी का, क्लासिफिकेशन शेड्यूल, थिसोरस और सब्जेक्ट हेडिंग। ये तीन एग्जांपल हो गए कंट्रोल वोकेबुलरी के। अब अगली थोड़ा सा एक दो पॉइंट और डिस्कस करते हैं कंट्रोल वोकेबुलरी के बारे में। कंट्रोल वोकेबुलरी this is useful for the translation of any key term from the natural language to the artificial language, ठीक है। कंसिस्टेंसी और यूनिफॉर्मिटी बनाने के लिए ये यूज होता है, और अल्टीमेट जो पर्पस है इसका वो है रिट्रीवल, ठीक है। तो जो दो अगर अगर बात करें कि इसका जो मेजर पर्पस है या मेजर ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कंट्रोल वोकेबुलरी का, तो वो है कंसिस्टेंट रिप्रेजेंटेशन, कि कोई भी टर्म्स या कोई भी कॉन्सेप्ट आप जो यूज कर रहे हैं वो कंसिस्टेंट है, जो एक जगह पे आपने यूज किया है वही सारे जगह पे यूज किया है, ऐसा नहीं कि एक ही चीज का कई वर्जन आपने लिखना शुरू कर दिया, एक ये है। और दूसरा है कॉम्प्रिहेंसिव सर्च। तो if if control vocabulary is if the vocabulary is controlled, it is easy to ensure the comprehensive search। ज्यादा से ज्यादा की टर्म्स तब तक आपका एक्सेस हो सकता है सी और सी ऑल्सो रेफरेंसेस के साथ, और आप फर्दर यू कैन सर्च deeper, okay, or you can go to the more granular level. So coming back to the next part, that is thesaurus construction। तो thesaurus कंस्ट्रक्शन के लिए कुछ चीजें जो आपको ध्यान में रखनी है कि सबसे पहले तो आपको स्कोप डिफाइन कर लेना है, या डोमेन डिफाइन कर लेना है कि किस डोमेन में आपको thesaurus बनाना है, thesaurus कंस्ट्रक्शन। तो सबसे पहले स्कोप आइडेंटिफाई करोगे, उसमें डोमेन और ये सारी चीजें आएंगी। देन फेसेट्स के बेसिस पे कैटेगराइज करेंगे आप टर्म्स को, फेसेट्स के बेसिस पे टर्म कैटेगराइजेशन। देन कलेक्ट करेंगे डिफरेंट टर्म्स को, कलेक्ट दी टर्म्स, और फिर उन टर्म्स के बीच में रिलेशंस बना देखने हैं। देन यू हैव टू अरेंज इन अ फॉर्म, जो फॉर्म मैंने बताया था डिस्क्रिप्टिव, पहले ऊपर डिस्क्रिप्टर आएगा, फिर स्कोप नोट आएगा, फिर ब्रॉडर नैरोअर टर्म्स आएंगे, फाइनली यू हैव टू put in a format
and once it is put in the format, final evaluation. अब evaluation की अगर बात करते हैं thesaurus में, तो you have to see whether the terms are specific or not. So mostly when we talk about evaluation, all kind of evaluation in mostly when we talk about any tool or any system, we do the parametric evaluation. Parametric evaluation means evaluation based on parameters. Parametric evaluation. Then some parameters can be in terms of thesaurus, that can be specificity, then completeness, whether entire domain is being covered or not, kind of coverage. Then whether different word forms are used, or C also references are used or not, so that proper search can be performed. Then then another can be at what extent it is able to manage the synonyms, how the linking has been done. तो ये सारे पैरामीटर्स हो गए जिसके बेसिस पे किसी भी थिसोरस को इवेलुएट करा जा सकता है। थिसोरस के बाद आगे बढ़ते हैं और आते हैं थिसोरोफिसेट पे। थिसोरोफिसेट ये कॉम्बिनेशन है थिसोरस थिसोरोफिसेट। तो ये इसमें दो चीजें हैं, एक तो थिसोरस है और दूसरा है फेस्टेड क्लासिफिकेशन। फेस्टेड क्लासिफिकेशन एंड थिसोरस, ये दोनों एक साथ बनाया गया है। ठीक है, ये मोस्टली बनाया गया था इंजीनियरिंग डोमेन के लिए, बट इट इज बीइंग यूज्ड बाय अदर डोमेन एज वेल। ठीक है, तो इसका जो दो पार्ट होता है, पहला पार्ट है क्लासिफिकेशन पार्ट। क्लासिफिकेशन पार्ट में अल्फाबेटिकल लिस्ट, कैपिटल सारे कैपिटल लेटर्स में अल्फाबेटिकल लिस्ट होती है और नंबर्स होते हैं दो से फ्रॉम 2 to 9। तो सिमिलर टू व्हाट DDC हैज, लाइक ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 1000, आई मीन 1000 क्लासेस, दैट इज 999। अब उसी तरीके से इसमें क्या करते हैं, अल्फाबेटिकली ऑल द नंबर्स A to Z, and then all the numbers from 2 to 9, these will be included. This was given by Gene Atkinson. Gene Atkinson was the person, J. Atkinson, and it came in 1958. ठीक है, ये एग्जाम्पल है thesaurus. This is the example of, this includes both classification scheme and thesaurus. एक दूसरा टूल जो यूज होता है इस टर्म में वो है क्लासोरस। क्लासोरस इज thesaurus for POPC. POPC is a indexing language which is used for indexing different terms across the domain. And as I told previously that it was derived by G. Bhattacharya. It has two structure. One is systematic part and another is the alphabetical part. Systematic part is the rule part basically, and the alphabetical part is thesaurus part. Alphabetical part is thesaurus. और जो rules बनाए गए हैं इसमें, इसको हम जैसे रंगनाथन ने दिया हुआ था PMEST, उसी प्रकार से यहाँ पर टर्म्स को बनाने के लिए, यहाँ पर इंडेक्स को बनाने के लिए
गणेश भट्टाचार्य ने एक स्ट्रक्चर बनाया, एक सिस्टमेटिक पार्ट बनाया, जिसमें ये डी का मीनिंग होता है डोमेन और डिसिप्लिन, then E stands for entities, then then P stands for property, A stands for action and M stands for modifier. तो जब भी इंडेक्सेस बनाए जाएंगे तो इन कीवर्ड्स का इन सारे के सारे इंडेक्स टर्म को पहले एनालाइज किया जाएगा DEPAM के बेसिस पे, एंड अकॉर्डिंगली दे कैन बी पुट और द इंडेक्सेस विल बी प्रिपेयर्ड। और जो दूसरा पार्ट है ये अल्फाबेटिकल पार्ट है। अल्फाबेटिकल पार्ट में थेसोरस के पूरा का पूरे डोमेन का सारे कीवर्ड्स जो विल बी kept. Now moving to the next section, that is the kind of different indexing techniques. ठीक है, so there are two kinds of let me just draw another another workflow diagram, or you can say, yeah, another workflow diagram for indexing techniques. तो जो इंडेक्सिंग टेक्निक्स हैं इनको ब्रॉडली दो भागों में बांटा गया है। एक है डेराइव्ड इंडेक्सिंग और दूसरा है असाइन्ड इंडेक्सिंग। डेराइव्ड और दूसरा है असाइन्ड। डेराइव्ड इंडेक्सिंग जो होती है उसमें दिस इज काइंड ऑफ एक्सट्रैक्टिव। इसमें डायरेक्टली की टर्म्स को या कॉन्सेप्ट्स को एक्सट्रैक्ट करा जाता है, एंड डायरेक्टली फ्रॉम द डॉक्यूमेंट्स ऑल द कॉन्सेप्ट्स आर डिराइव्ड। ओके, या टाइटल से डिराइव करा जाता है टर्म्स को, या डॉक्यूमेंट से डिराइव करा जाता है टर्म्स को, और विदाउट यूजिंग मच ऑफ योर ओन indexing language or own format. You just use all the keywords or all key terms to develop the derived index. इसके जो दो एग्जांपल हैं वो हो सकते हैं कीवर्ड इंडेक्सिंग, पूरा का पूरा कीवर्ड लिया जाता है, ठीक है, और दूसरा है साइटेशन इंडेक्सेस। असाइन्ड इंडेक्स को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है प्री कोऑर्डिनेट और दूसरा है पोस्ट कोऑर्डिनेट इंडेक्स। प्री कोऑर्डिनेट और दूसरा है पोस्ट कोऑर्डिनेट। अब प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग को अगर हम डिफाइन करें तो प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सेस आर द दोनों ही जो इंडेक्सिंग के जो टाइप्स हैं असाइन्ड में वो कोऑर्डिनेट इंडेक्सेस हैं। और असाइन्ड इंडेक्सिंग का मतलब होता है आप इंडेक्सिंग लैंग्वेज और किसी खास टेक्निक का यूज करके असाइन करते हो इंडेक्सेस को। अपने आप से कीवर्ड्स को एज इट इज नहीं लिया जाता है टाइटल से या किसी और इंटायर डॉक्यूमेंट से। यहाँ पे आप यूज करते हो कुछ खास इंडेक्सिंग लैंग्वेजेस का, ठीक है। तो अब ये प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग को अगर डिफाइन करें तो इसमें कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं वो इनपुट स्टेज पर ही कॉन्सेप्ट्स को दे दिया जाता है इंडेक्सर के द्वारा, ठीक है। वो और इसका क्या मतलब हुआ कि जिस समय इंडेक्सिंग की जा रही है, इंडेक्स तैयार किया जा रहा है, उसी समय आप आप कीवर्ड्स को इस तरह से दोगे कि लेटर ऑन व्हेन यूजर इज सर्चिंग, that is you do not have to do the index will not be performed at the search stage, rather it will be done at the creation stage itself, ठीक है। सर्च स्टेज पे जो होगा, सर्च स्टेज पे जिन कीवर्ड्स जब कोऑर्डिनेट्स किए जाते हैं टर्म्स, तो उसको बोला जाता है
पोस्ट कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग सिस्टम। ठीक है, तो अब एग्जांपल्स की बात करें अगर प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग सिस्टम के, तो कटर का इंडेक्सिंग सिस्टम प्री कोऑर्डिनेट का एग्जांपल है। उस तरह से कैसर का इंडेक्सिंग सिस्टम भी जो था सिस्टमेटिक इंडेक्सिंग, ये भी प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग सिस्टम है। देन रिलेशनल इंडेक्सिंग जो that was given by Faraday, that also is pre coordinate indexing. So chain indexing is also pre coordinate indexing. Tracy is also pre coordinate indexing. Opsy is also pre coordinate indexing. तो ये सारे प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग के एग्जांपल हो गए। पोस्ट कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग के एग्जांपल की बात करें तो मेजरली यूनिटर्म इंडेक्स, और जो कंप्यूटराइज्ड इंडेक्स हैं, अभी जो सर्च इंजन इंडेक्सेस होते हैं, कंप्यूटराइज्ड सर्च इंजन के जो इंडेक्सेस होते हैं वो भी इंडेक्सेस पोस्ट कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग के एग्जांपल में आते हैं। मैंने पिछले क्लास में बताया भी था आप लोगों को कि जब आप सर्च परफॉर्म कर रहे हो उस समय कीवर्ड जो क्रॉलर होता है वो इंडेक्सिंग परफॉर्म करता है इन द बैक एंड। ठीक है, तो नाउ कई बार कुछ क्वेश्चंस मैंने देखे हैं, आया है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैनुअल एंड ऑटोमेटेड इंडेक्सिंग। कुछ क्वेश्चंस आए हैं मैनुअल वर्सेस ऑटोमेटेड इंडेक्सिंग के, मैनुअल वर्सेस ऑटोमेटेड। तो मैनुअल इंडेक्स जो होता है उसमें सारा प्रोसेस, चाहे वो इंडेक्सिंग तैयार करना हो, कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करना हो, उनको फॉर्मेट में डालना हो, फैमिलराइज होना हो, ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट या सारा का सारा जो कंटेंट प्रोसेस है वो मैनुअली होता है। और जो ऑटोमेटेड इंडेक्सिंग होता है वो यूजिंग द एल्गोरिदम्स और सिस्टम्स, यू कैन यूज इट द मशीन्स फॉर डेवलपिंग द इंडेक्स। तो मैनुअल में बेसिकली जो इंडेक्सिंग होती है, क्वेरी एनालिसिस होता है, मैचिंग होता है, रिट्रीवल होता है, ये सारा का सारा प्रोसेस मैनुअल होगा। जबकि ऑटोमेटेड में ये सारा का सारा प्रोसेस बेस्ड ऑन सम कंप्यूटर सिस्टम और बेस्ड ऑन एल्गोरिदम होगा। तो अब बात करें अगर इन दोनों के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के, तो मैनुअल विल टेक टू मच टाइम। ओके, of course it is difficult to beat the speed of machine. Okay, and multiple indexers are there, so suppose you have hired 10 indexers, so they will do it according to their own understanding. तो अब इससे क्या होगा कि कई बार एक ही इंडेक्स को कई कई लोग बनाएंगे तो कई तरीके से तैयार करेंगे इंडेक्स को, सो यूनिफॉर्मिटी विल नॉट बी मेंटेन्ड। ठीक है, सो दैट इज अनदर चैलेंज विथ मैनुअल इंडेक्सिंग। और क्या होगा कि एडवांटेज ऑफ मैनुअल इंडेक्सिंग कैन बी, इट कैन बी एक्यूरेसी। स्पीड तो चलो मैच नहीं कर सकते, पर हाँ एक्यूरेसी आप मैच कर सकते हो अगर आपने और ह्यूमन बीइंग की जो कैपेसिटी है वो दे कैन थिंक इन अ मच प्रिसाइज वे देन मशीन। ठीक है, तो ये एक ये एडवांटेजेस हो गए। तो अब ऑटोमेटेड इंडेक्सिंग जब बनाई जाती है तो सबसे पहले आप आपको फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफाई करना होता है टर्म्स की, फ्रीक्वेंसी ऑफ टर्म्स, देन यू हैव फ्रीक्वेंसी हेलो ऑफ टर्म्स, हेलो then the next step in this regard is eliminate the stop words। इनको मैं थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ। एंड assign the term।
तो ऑटोमेटेड इंडेक्सिंग जो होती है, इसके ये उसका ये प्रोसेस है। ऑटोमेटेड इंडेक्सिंग के प्रोसेस में सबसे पहले क्या करते हैं, टर्म्स की फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा टर्म कितनी बार आया हुआ है। फिर एलिमिनेट कर देते हैं स्टॉप वर्ड्स। स्टॉप वर्ड्स का मतलब हुआ सारे के सारे ऐसे वर्ड्स जो कि ग्रामर के सेंस में यूज किए जाते हैं, जैसे ऑक्सिलरीज हो गई, इज, एम, आर, वाज, वर। फिर आर्टिकल्स हो गए, ए एंड, देन प्रीपोजिशंस हो गए, ऑन, ऑफ। तो ये सारी चीजें आपको एलिमिनेट करनी होती है। देन यू असाइन द टर्म्स बेस्ड ऑन द इम्पोर्टेंस। ठीक है, तो ऑल दीज यू डू ऑटोमेटिकली यूजिंग सर्टेन मशीन्स। तो दिस इज कॉल्ड automated indexing. Now, keyword indexing is also asked in the question paper quite often. Keyword indexing was given first by HP Loon around 1950s. ओके, तो जो सबसे पहला कीवर्ड, बहुत सारे कीवर्ड इंडेक्सिंग के बहुत सारे टेक्निक्स हैं, जैसे कि क्विक, पॉक, बैक, ईट अल्फा, देन वेडेक्स। ये सारे एग्जाम्पल हैं कीवर्ड इंडेक्सिंग की, और बहुत थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है इन सभी में। ठीक है, आप एक बार अगर आपने समझ लिया तो आप आसानी से कर सकते हो। तो क्विक स्टैंड्स फॉर कीवर्ड इन कॉन्टेक्स्ट, कीवर्ड इन कॉन्टेक्स्ट। So in given context, the keyword will be index. Keyword out of context, keyword augmented context, key term alphabetical, key term alphabetical, and WEDEX stands for word and author index. ठीक है, तो अब इन सब के बारे में बात कर लेते हैं ब्रीफली। तो एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं, जो मैंने क्लास में समझाया था, मैं सेम एग्जांपल लूंगा यहाँ पे। और उसके पहले कुछ चीजें जाननी जरूरी हैं कि सबसे आप कीवर्ड इंडेक्स बनाते समय कीवर्ड्स टाइटल से उठाएंगे। ठीक है, फिर एलिमिनेट करेंगे स्टॉप वर्ड्स को, एलिमिनेट स्टॉप वर्ड्स। स्टॉप वर्ड्स आप जानते हैं, जैसे कि एग्जांपल हो गया ए एंड द, ये सारे। फिर एप्रोप्रिएट टर्म्स आइडेंटिफाई करेंगे आप, एट टर्म्स, and then you do the indexing. Suppose you have a document which is having a title, uh, title suppose just treatment of heart disease, CAR, heart disease in India. Suppose this is the title of a document. अब इसका इंडेक्स बनाना है अगर, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ये जितने जो जो सर्च टर्म्स जो, या आपको जो लगते हैं, जो जो टर्म्स इंपॉर्टेंट हैं, जिनके नाम से एंट्रीज होनी चाहिए, उन सभी को आपको आगे लेके आना है। ठीक है, और उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो ऐसे होगा। मान लो पहला हो गया ट्रीटमेंट, तो ट्रीटमेंट का, और ये ध्यान रखना है
कैपिटल में वो वर्ड लिखा जाएगा, ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट डिजीज इन इंडिया। अब ट्रीटमेंट के बाद क्या होगा, ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट डिजीज इन इंडिया, तो जो जहां पे लास्ट वाला टर्म आएगा वहां पे एक स्लैश देना है, और इसके साथ साथ उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट की कोई यूनिक आइडेंटिटी होगी। हो सकता है कि वो एक्सेशन नंबर हो इसका, मान लो इसका इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट का एक्सेशन नंबर 11 है, तो मैंने 11 दे दिया। अब अगला जब टर्म यूज करोगे तो दूसरा वाला जो टर्म यूज करना है वो है हर्ट, तो हर्ट आ जाएगा आगे कैपिटल में, हर्ट, और फिर अगले बाकी के सारे इंफॉर्मेशन एज इट इज जाएंगे, डिजीज इन इंडिया, और स्लैश यहाँ देना है, फिर ट्रीटमेंट ऑफ, और फिर यहाँ पे जो कीवर्ड नंबर। इसी तरह से सारे जो चॉइस ऑफ एक्सेस पॉइंट्स हैं वो पहले नंबर पे डिजीज, डिजीज ऑफ, सॉरी कंट्रोल सेट, इन इंडिया, डिजीज इंडिया इन इंडिया स्लैश ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट 11। उस तरह से अगला हो सकता है इंडिया भी बनाना हो, तो इंडिया का भी बना लो, इंडिया, देन ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट डिजीज, ठीक है, इसका भी 11 हो गया। तो आपने देखा कि यहाँ पे 4 एंट्रीज बनाई गई हैं, ये है कीवर्ड इन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो अब ये कीवर्ड्स की एंट्रीज बनाई जा रही हैं, ठीक है, हार्ट डिजीज बेस्ड ऑन ऑल द इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स, इनकी एंट्रीज बना दी गई। तो ये हो गया पहले तरीके का कीवर्ड इंडेक्स, जिसको क्विक बोला जाता है। और जब कॉक की बात करेंगे तो उसमें कुछ नहीं करना है, यू हैव टू जस्ट गिव द टर्म, ठीक है। जैसे इसी में मैं एग्जांपल आपको बता देता हूँ, ट्रीटमेंट ऑफ, मान लो यही है, ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट डिजीज इन इंडिया। आगे इसके जो जो इसमें जब इंडेक्स बनाने लगेंगे तो पहले लिखेंगे ट्रीटमेंट, और यहाँ पे नीचे ये पूरा का पूरा आ जाएगा, पूरा का पूरा टाइटल आ जाएगा, फिर हार्ट कंप्लीट title of heart will come here in the bottom. Then same will happen for the disease, everything will come down as it is. Then for India also like that, India. Here also you have to give the number, ठीक है, easily, there is no difference in that. अब जो क्वैक होता है, जो तीसरा वाला है KWAC जो मैंने बताया था, इसमें कुछ एडिशनल टर्म्स भी आप ऐड कर सकते हो। मान लो आपको ऐड करना है ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट डिजीज में कुछ और चीजें अपने मन से ऐड करना चाहते हो, जैसे मान लो इफ यू फील लाइक people might search from Asia also, so you can add Asia also as one of the terms, and same way the way it is given in quick you can sorry Coq, you can do it in Quack also. Keat alpha, nothing happens, only thing is the key terms will be given alphabetically, arranged alphabetically। जैसे यहाँ पे T सबसे पहले आ रहा है, H आ रहा है, फिर डिजीज और फिर इंडिया आ रहा है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले डिजीज आएगा, फिर हार्ट आएगा, फिर नो IEFGHI, ओके, देन थर्ड वन इज I, एंड देन फोर्थ वन इज ट्रीटमेंट। तो ये अल्फाबेटिकली अरेंज जब हो जाएगा तो वो है कीट अल्फा। अगला है वेडेक्स। वेडेक्स में क्या होगा, इसमें वर्ड तो रहेंगे, इसके अलावा अलावा क्या होगा, ऑथर्स भी आ जाएंगे, जो ऑथर्स का अलग से बनेगा। मान लो आप में से किसी का नाम है उमित,
तो सुमित सिंह है मान लो, तो सिंह, सुमित, एंड देन दिस कीवर्ड, दिस इंटायर टाइटल विल कम। तो ऑथर के नाम पर भी इंडेक्स बनेगा फेडेक्स में। ठीक है, तो ये हो गया ओवरऑल इंफॉर्मेशन कीवर्ड इंडेक्सिंग का। ठीक है, तो इस पे कुछ क्वेश्चंस आए हैं, तो अगर आपसे पूछा जाता है तो आप इसका ब्रीफ इंफॉर्मेशन दे सकते हो कि what is keyword indexing, where the keywords are taken from the title mostly to derive the indexes, and it was first initiated by HP Loon in around 1950s. The different techniques of keyword indexes include quick index, quack index, quack index, keat alpha, wedex। तो ये सारे के सारे इंडेक्सेस जो है इनको आप एक एग्जांपल से समझा दो। सो दिस विल बी सफिशिएंट फॉर अ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन एज वेल। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला इंडेक्सिंग सिस्टम जो है वो है चेन इंडेक्सिंग। चेन इंडेक्सिंग के बारे में आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। ठीक है, चेन इंडेक्स के जो मेजर कंपोनेंट्स हैं वो हैं चेन और लिंक, और दूसरा है लिंक। तो मान लो 300 is in DDC, 300 is for social science and 330 is for economics, और शायद 332 होगा कुछ पब्लिक फाइनेंस और समथिंग, और बजट समथिंग, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्ट। तो अब जब इन सारे कीवर्ड्स को आप समझा रहे हो तो एक बात समझ में आ रही है कि ये एक एक चेन में आ रहे हैं। ठीक है, एक सेम हायरार्की में नहीं है। सोशल साइंस ब्रॉडर है, इकोनॉमिक्स नैरोअर है, पब्लिक फाइनेंस उससे भी नैरोअर है। ठीक है, तो ये जो समझ है ये चेन से आती है, और इनको इन दोनों इन सभी के बीच में एक लिंकिंग होती है, आपस में जुड़े हुए हैं हायरार्की के बेसिस पे। ठीक है, तो चेन बेसिकली बताता है सब्जेक्ट को, और लिंक बताती है इन दोनों के बीच में रिलेशन को। ठीक है, तो लिंक्स कई तरीके के होते हैं, चार तरीके के लिंक्स की को डिस्क्राइब करा गया है चेन इंडेक्सिंग में। एक होता है शॉर्ट लिंक। शॉर्ट लिंक क्या होता है कि वो सारे टर्म्स वो सारे टर्म्स जो यूज किए जाते हैं सर्च के लिए, जैसे मान लो हमने बोला था हार्ट डिजीज इन इंडिया, तो हार्ट डिजीज और इंडिया, ये सारे शॉर्ट हेडिंग हो गए। अनसॉर्ट लिंक्स जो हुए, शॉर्ट लिंक्स, इसमें मान लो कुछ ऐसे लिंक्स हैं जो जो जिनको जिनसे कि सर्च परफॉर्म नहीं करा जाएगा इनके बीच में। मान लो समथिंग, फॉर एग्जांपल इनके बीच में जो हायरार्की लगाई जाती है, मान लो 330, यहाँ पे देख लेते हैं 332.572, तो ये अनसॉर्ट है, इससे सर्च नहीं किया जाएगा। ठीक है, नो नो यहाँ पे कुछ ऐसा ऐसा टर्म्स कोई ऐसा मान लो एशिया है, आपको एशिया या इंडिया, किसी किसी भी टॉपिक में इज एम आर या ऐसा कुछ आ गया, ऐसी चीजें जो सर्च नहीं करी जाएंगी, जिससे कि इंडेक्स बनाने की जरूरत नहीं है, तो वो सारे अनसॉर्ट लिंक्स में दिखाए जाते हैं। अगला होता है फॉल्स लिंक। फॉल्स लिंक में वो सारे ये चीजें आती हैं जो डिलिमिटर्स हो गए, डिलिमिटर्स हो गए, वो सारे फॉल्स लिंक में आते हैं। और अगला है मिसिंग लिंक। अगर मान लीजिए कोई क्लासिफिकेशन शेड्यूल है, और उस क्लासिफिकेशन शेड्यूल में कोई चीज मिसिंग है, मान लीजिए कोई नया सब्जेक्ट डेराइव हो गया आ, अभी के टर्म में, और क्लासिफिकेशन शेड्यूल ने इंक्लूड नहीं करा है वो टर्म, तो वो टर्म्स आप
रखोगे मिसिंग लिंक के कैटेगरी में। ठीक है, ये हो गया चेन इंडेक्सिंग का बेसिक्स। चेन इंडेक्सिंग पे यूजुअली जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपके पिछले सेमेस्टर में आए होंगे, जब आई गेस व्हेन यू आर स्टडीइंग कैटलॉगिंग थ्योरी। अगला है पॉप्सी। पॉप्सी का जो बेसिस है वो है, मैंने पहले भी बताया था, डीपम, डिसिप्लिन, एंटिटी, प्रॉपर्टी, एक्शन और मॉडिफायर। तो एक एग्जांपल से समझाता हूँ इसको। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ implementation of databases in government libraries of India। मान लो ये टर्म है और इसका इंडेक्स बनाना है। जैसा कि मैंने बताया था कि इसका इंडेक्स बनाने के लिए आपको क्लासोरस यूज करना है, और क्लासोरस के दो पार्ट हैं। एक है रूल पार्ट, सिंटैक्स पार्ट या रूल पार्ट, जिसमें कि डीपम यूज होता है, और दूसरा है थेसोरस पार्ट, जिससे कि की टर्म्स लिए जाएंगे। ठीक है, तो अब इस एग्जांपल में समझे हम कि DEPAM यहाँ पे क्या क्या होगा। तो यहाँ पे जो डोमेन बना अपना वो LIS बना, LIS डोमेन की बात हो रही है। अगला होगा E। E stands for entity. In this case, entity is something similar to what was the matter in Ranganathan. Okay, ये हो गया entity. Then property. Property is in this case database is a property. Implementing or implementation is action. Okay, action, or what was energy in PMST, that becomes action here. Then next one is India is modifier, something which is kind of qualifier. तो अब इन सभी को अगर इंडेक्स बनाना है तो सबसे पहले तो क्या हो जाएगा, डोमेन यूज किया जाएगा। डोमेन, अब एक एक कीवर्ड्स को अब फर्दर व्हाट यू कैन डू इज, फर्दर यू कैन इंक्लूड सम ऑफ द की टर्म्स इनसाइड। ओके, गवर्नमेंट लाइब्रेरीज तो है ही हैं, आप लाइब्रेरी भी इवन यूज कर सकते हो। ठीक है, कुछ कुछ टर्म्स ऑथर्स कैन यूज देमसेल्व्स लुकिंग at the thesaurus part of clausaurus or the index। अब जब आप इंडेक्स तैयार करने लगेंगे तो मान लो आपको पहला इंडेक्स बनाना है लाइब्रेरी से, तो लाइब्रेरी विल बी द चॉइस ऑफ एक्सेस पॉइंट, देन LIS dot library dot government library, then information, maybe this is related to information sources. Suppose database is narrower for information sources, so information sources will also come. Then another dot for another concept. Similarly, you can use the other concepts, and for all the concepts you have to make the entry. So this is the example for making notation in POPC. अगला हमें जो बात करना है आज वो है बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन। बिब्लियोग्राफी का मतलब होता है लिस्ट ऑफ बुक्स, ठीक है, या लिस्ट ऑफ रिसोर्सेज। तो उन रिसोर्सेज को डिस्क्राइब करने के लिए कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, कौन कौन से इंफॉर्मेशन हैं जो जरूरी हैं किसी भी बिब्लियोग्राफी को डिस्क्राइब करने के लिए, उन्हें बोला जाता है। और इस प्रोसेस को, इस पूरे पूरे प्रोसेस को बोला जाता है बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन। कैटलॉग कार्ड्स में आपने जब पिछले साल एंट्री बनाते समय ध्यान दिया होगा
कि आप ISBD को फॉलो करते हो, डिफरेंट एरियाज ऑफ ISBD आपने देखा होगा, उसको फॉलो करते हो डिस्क्राइब करने के लिए किसी भी बुक को या किसी भी रिसोर्सेज को। तो ISBD स्टार्टेड बाय इफ्ला इन 1969, और जो पहले तरीके का जो रिसोर्स which was for which the ISBD has done the description, that is ISBD M, that is monographs. ठीक है, इसके this came in 1971. So if you remember the catalog cards where you were making the catalog entries, so there would be 9 areas like the title, then statement of responsibility, then edition, material type, publication, then physical description, then series, note, and add other numbers. These are the things which you are using to describe in the catalog cards. तो ये सारे क्या हैं? ये सारे के सारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन से डेराइव किए गए थे, जो कि इफ्ला द्वारा दिया गया है। ठीक है, अब ISBD हर एक रिसोर्स को डिस्क्राइब करने की जरूरत होती है, क्योंकि सर्च या रिट्रीवल तभी पॉसिबल है जब आप कोई मेटा डेटा या कोई डिस्क्रिप्शन उसको ऑलरेडी प्रोवाइड किए हुए होंगे। ठीक है, इसका ही एडवांस वर्जन आया जो बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स को डिस्क्राइब करने के लिए, वो है FRBR बोलते हैं उसको, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स फॉर बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स, FRBR। ठीक है, इसमें जो किसी भी डॉक्यूमेंट को डिस्क्राइब करने के लिए वर्क, एक्सप्रेशन, मैनिफेस्टेशन एंड आइटम, ये चार चार मेजर कंपोनेंट्स होते हैं जिसके बेसिस पे किसी भी रिसोर्स को डिस्क्राइब किया जा सकता है। जैसे मान लो कि आपने कोई नॉवेल या कोई बुक है, मान लो मुंशी प्रेमचंद का कोई बुक है, मान लो मे बी कोई स्टोरी है, anything you can take, maybe the third wave, you take the work third wave by Elvin Toffler, third wave by Elvin Toffler, so this is the work। ठीक है, अब इसमें एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? ये एक्सप्रेशन हो सकता है कि इंग्लिश में दिया गया है, इंग्लिश लैंग्वेज में, और पब्लिश हुआ है किसी खास ईयर में, मान लो 1995, जस्ट एग्जांपल आई एम गिविंग, किसी ईयर में दिया गया है। देन मैनिफेस्टेशन क्या होगा इसको? ये एक बुक फॉर्म में मैनिफेस्ट करी गई है, बुक फॉर्म में, तो ये हो गया इसका मैनिफेस्टेशन। और आइटम, मान लो आपकी लाइब्रेरी में इसको एक्सेस करा गया है, तो पहला तो इसका कुछ ISBN नंबर है क्योंकि ये बुक फॉर्म में है, फिर कोई इसका कॉल नंबर आपने दिया हुआ है इन योर लाइब्रेरी। तो दिस इज अनदर वे टू डिस्क्राइब द रिसोर्स, जिसको कि हम FRBR बोलते हैं, फंक्शनल रिक्वायरमेंट फॉर बिब्लियोग्राफी रिकॉर्ड्स। नेक्स्ट वन इज मेटाडेटा। मेटाडेटा मेटाडेटा होता है डेटा अबाउट डेटा। आप सभी को क्लास में भी हम लोग इस पे डिस्कस कर चुके थे, डेटा अबाउट डेटा और इंफॉर्मेशन अबाउट एनी इंफॉर्मेशन और डेटा। तो अगर आप मान लीजिए आपके हाथ में कोई पेन है या पेंसिल है, तो हर एक इंटिटी का कुछ ना कुछ मेटाडेटा होता है। जैसे पेन की कंपनी कहाँ से बनी हुई है, किस कलर की पेन है वो, और वो वेदर इट इज जेल पेन और एनी अदर वे बॉल पेन, और व्हाट इज द कलर ऑफ द पेन, और व्हिच कलर, सो साइज क्या है उसका। इस तरह से बहुत सारे इंफॉर्मेशन होते हैं जो दिए जा सकते हैं उस पर्टिकुलर रिसोर्स के बारे में। सिमिलरली
about books also or resources, other materials also, there are descriptions like title होता है, author होता है, फिर सीरीज होती है, कोई उसका पब्लिशर है बुक का, उस पर्टिकुलर बुक का कोई सोर्स है, then it's some type is there, then dates of publication and other information, then who all are the other contributors, maybe editors, then what is the coverage, then what are the licensing. तो ये सारे के सारे इंफॉर्मेशन क्या है, एक एक बुक को बताने के लिए सफिशिएंट है। ये बताएंगे कि कोई भी पर्टिकुलर लाइब्रेरी रिसोर्स या बुक, पर्टिकुलरली बुक को डिस्क्राइब करने के लिए कौन कौन से एलिमेंट्स यूज किए जा रहे हैं। आप एक एग्जांपल देख लो मार्क 21 का। मार्क 21 मार्क 21 क्या है? दिस इज मशीन रीडेबल कैटलॉग फॉर 21st सेंचुरी। इसमें बहुत सारे टैग्स होते हैं, डिफरेंट टैग्स होते हैं। वो टैग्स क्या हैं? वो टैग्स एक तरह से मेटा डेटा हैं पर्टिकुलर बुक और पर्टिकुलर रिसोर्स को डिस्क्राइब करने के लिए। ठीक है, जैसे 100 नंबर, 245 हो गया, 260 हो गया पब्लिशर के लिए, या दूसरे डिस्क्रिप्शंस हो गए, ये हो गया टाइटल या फिर ऑथर, ये सारी चीजों के लिए। तो तो ये दिस इज example of metadata. Then Dublin core is there. Dublin core is another standard where the resources can be which can be used to describe the resources. इसमें title होता है, creator होते हैं, subject, description, publisher, इस तरह से 15 elements होते हैं. There are 15 elements for Dublin core, 15 elements. ठीक है, तो these are the example of metadata. Now the next thing is in this regard is data mining and semantic web. A bit I will discuss about that also, and then we will have question answer. तो जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने बताया था, जो टीसीपी पे हुई थी डेटा माइनिंग। डेटा माइनिंग is basically the process of sorting through large data sets to identify patterns and relationships that can help to identify or to optimize any business or academic or any other engagement solutions। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आपको पैटर्न बनाना होता है। बहुत सारे लार्ज डेटा सेट होगा, वो डेटा सेट डेटा वेयर हाउसेस से हो सकते हैं, या फिर डेटा लेक से हो सकते हैं, या डेटा बेसिस से हो सकते हैं, या आपके खुद के कलेक्टेड डेटा हो सकते हैं। तो उनसे डेटा को उठाना, बहुत सारे डेटा, बहुत सारे सोर्सेज, आई मीन मर्ज सोर्सेज विल बी देयर, द डेटा विल बी large in volume, and that data you have to take, you have to make insight, or you have to make the pattern, derive the patterns out of the data and get the result. तो इसमें क्या होता है, इसके डेटा माइनिंग को परफॉर्म करने के लिए जो प्रोसेसेस हैं वो हैं डेटा गैदरिंग। सबसे पहले data gathering means data collection. So in this case, from different sources you have to collect the data sets. Then data preparation. So data preparation is also called as data cleaning or data manipulation or data transformation. Then data mining is the third part, where you derive different kind of models using the techniques like classification, clustering or association rules, or you can use
association rules और maybe regression. तो ये सारे के सारे टेक्निक्स यूज किए जाते हैं डेटा माइनिंग के लिए. एंड फाइनल वन विल बी डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन. And in that, what you do, you make the models, different models which can be used in long term. Data visualization is performed at this stage. ठीक है. तो जो पर्पस है डेटा माइनिंग का, सबसे पहले बहुत सारे लार्ज वॉल्यूम में डेटा सेट्स अवेलेबल होते हैं, तो उनसे क्या करना है, पैटर्न्स आइडेंटिफाई करना है. और उन पैटर्न्स को क्यों आइडेंटिफाई करना है, ताकि आप उन डेटा से कुछ इंसाइट्स ले सको, इंसाइट्स निकाल सको, और उन इंसाइट्स को अपने बिजनेस के लिए या अपने आपका जो भी पर्पस हो उसके लिए यूज कर सको. ठीक है. तो मोस्टली इट इज फॉर प्रिडिक्टिंग. ओके, प्रिडिक्टिंग और प्रिडिक्टिंग और derive the trend, the trend. अब ये इसका पूरा प्रोसेस हो गया, जिसमें डेटा गैदर करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, डेटा माइनिंग होती है और डेटा एनालिसिस होता है. एक और चीज जो हमने अपने कोर्स में डिस्कस करी थी वो था सिमेंटिक वेब. आप सभी ने वेब 1.0, वेब 2.0, वेब 3.0 ये टर्म्स सुने होंगे. तो वेब 1.0 होता है सिंटैक्टिक वेब. सिंटैक्टिक वेब इन द सेंस ऐसा वेब जो स्टैटिक हो, ठीक है, जिसमें डायनेमिक कंटेंट की ऑप्शंस ना हो, जिसमें जो वन वे ट्रैफिक हो. 1.1 1.0 से समझो. 2.0 ऐसा वेब का ऐसा वर्जन जहाँ पे दिस इज काइंड ऑफ टू वे कम्युनिकेशन, जिसमें यूजर एंड द फैसिलिटेटर्स बोथ कैन कम्युनिकेट. और इसका एग्जांपल हो गया आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जितने हो गए, वो एग्जांपल है वेब 2.0 का. वेब 3.0 को हम बोलते हैं सिमेंटिक वेब. ये जो वेब 1.0 और 2.0 है, ये सिंटैक्टिक वेब है. सिंटैक्टिक वेब सिंटैक्टिक वेब जो है वो मीनिंगफुल रिजल्ट्स नहीं दे सकता. इट प्रेजेंट्स यू द वेब ऑफ डॉक्यूमेंट्स. दिस सिंटैक्टिक वेब इज आल्सो कॉल्ड एज वेब ऑफ डॉक्यूमेंट्स. But when we talk about semantic web, instead of getting the document, we try to get the actual results which we are aspiring for. ठीक है. जैसे मैंने आपको कोई क्वेश्चन पूछना है कि आपने कोई क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ semantic web. So the web should be able to give you the definition, like whatever is the definition of semantic web, not the documents about the definition of semantic web. तो syntactic web क्या करता है, वो आपको डॉक्यूमेंट्स देता है, वेब ऑफ डॉक्यूमेंट्स. लेकिन सिमेंटिक वेब का पर्पस क्या है, एक्चुअल इंफॉर्मेशन जो आपको चाहिए वो रेडिली अवेलेबल हो. आपको जो चाहिए वो इंफॉर्मेशन आपको मिलना चाहिए. ठीक है. तो इसलिए इसको वेब 3.0 बोला जाता है. अब सिमेंटिक वेब की जो टेक्नोलॉजी है, ये इसको एक स्टैक से समझते हैं, सिमेंटिक वेब स्टैक से. दिस वाज गिवन बाय सिमेंटिक वेब टर्म वाज गिवन बाय टिम बर्नर्स ली. और इसका जो स्टैक है उसको मैं यहाँ पे बनाता हूँ. सबसे पहली चीज होती है यूआरआई. यूआरआई का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर. इसके दो पार्ट होते हैं. अ, ये URI is the combination of URL plus URN. URN stands for Uniform Resource Locator and URN stands for Uniform Resource Names. तो Uniform Resource Locator आप वेबसाइट्स पे जब सर्च करने जाते हो तो ब्राउजर में टाइप करते हो जो URL है. URN का एग्जांपल हो सकता है आपके जो
ISBN नंबर्स या ISSN नंबर्स जो है वो एग्जांपल हैं URN के किसी रिसोर्स को। तो URI ओवरऑल क्या है, ये एक तरह का आधार कार्ड है, एक तरह का यूनिक आइडेंटिटी है किसी भी इंडिविजुअल का या किसी भी रिसोर्स का जो कि वेब या इवन किसी भी रिलेशन का जो कि वेब पे अवेलेबल है। अगला जो कंपोनेंट रिक्वायर्ड है इसके लिए सिमेंटिक वेब के लिए वो है यूनिकोड। यूनिकोड जो है वो टेक्स्ट को लिखने के लिए काम में आता है वेब इन्वायरमेंट में। जब आप बाइनरी नंबर्स में देते हो तो सिस्टम का अपना एक तरीका होता है लिखने का, तो वो मोस्टली आस्की या यूनिकोड टेक्निक्स का यूज करता है। तो यूनिकोड इज द प्रेफर्ड लैंग्वेज फॉर द टेक्स्ट इन द वेब फॉर द सिमेंटिक वेब। अगला है रिसोर्स डिस्क्रिप्शन फ्रेमवर्क। तो ये है RDF। दिस इज अनदर इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजी विच इज रिक्वायर्ड, जिसमें सब्जेक्ट, प्रेडिकेट और ऑब्जेक्ट को कैसे रखा जाना है वो डिफाइन किया जाता है RDF के साथ। फिर होता है ऑन्टोलॉजीज। सिमेंटिक वेब में ऑन्टोलॉजीज को यूज किया जाता है। ऑन्टोलॉजीज जो है वो एक्सप्लिसिट रिलेशंस को बनाते हैं। जैसे मैंने बताया था कि थेसोरस में RT होता है, रिलेटेड टर्म, तो उसको मोर एक्सप्लिसिटली इट कैन बी एक्सप्रेस्ड। ठीक है, लाइक like the example of monkey eats banana. Monkey is in monkey eats banana. In this context, monkey RT banana you have to give banana if you want to discuss in thesaurus. But if you want to discuss the same thing in ontology, so here it will come monkey, the relationship banana, and this will be eats. ठीक है, और ये इसका इसका URI होगा, इसका भी URI होगा और इसका भी URI होगा, मंकी का भी, इट्स का भी, बनाना का भी। तो इट इज मोर एक्सप्लिसिट, एंड सिंस इट इज मोर एक्सप्लिसिट द रिजल्ट्स विल बी मोर प्रिसाइज एंड मोर कॉम्प्लेक्स रिजल्ट if ontologies are used. Then logic whatever semantic web should be able to perform their different logics and get the results. Proof is something uh, basically related to evaluation, that the context should not be, you know, the web should not give the random results, it should be proof. And trust means trust is something which is the topmost layer, which includes the includes the licensing and other related information. So these are the basic technologies which are envisaged by Tim Berners-Lee for semantic web technologies. So if you get questions related to this, you may just mention the different technologies and accordingly write the answers. So now, since the time has already gone, I just request you, if you have the questions, please unmute yourself and ask. Do you have any question? Any clarification? Any observation? Okay, then if you don't have any question or any query, now I can disconnect this class. Good luck for your exams, and I'm sure that all of you will do well. If you have, meanwhile, if you have any problem or any questions, and some of you, if you are not able to,
um, could not join the previous classes, you can visit as well during the exam or before the exam. We can discuss and we can have the um, personal interaction at as well. With this, I'm just going to close this session. Wish you all the